F flush. सर ते गेट इग्नोर नावाचं पण कुठलं तरी फंक्शन असतं ना, गेट इग्नोर डॉट काय. So try it. There are many solutions for that. Even if you Okay, are sir. not able to do that, then let me know. I'll provide the solution. ओके सर, झालंय बाकी सगळं झालंय, फक्त तेवढंच प्रॉब्लेम होतो बाकी नाही. Okay. What about others? सर माझा पण सेम प्रॉब्लेम येत होता, पण तो ऑनलाईन कंपायलरवर रन केल्यावर झाला सॉल्व. कुठला प्रॉब्लेम? सर तो गेटलाईनचा. अच्छा अच्छा, बरं, ठीक आहे. This is for all that whenever you are using getLine, because there is a space in between. Suppose we have to enter address. So whenever you are asking for address, and if user enters Nigdi and if he presses enter, then it's fine. There is no issue with the input. But when user enters something like this, Nigdi space Pune, then there is a problem because there is a white space in between. आणि त्या स्पेसमुळं इट रेकग्नाइजेस दॅट ओके निगडी दिस मच ओनली आय हॅव टू एक्सेप्ट. आणि नेक्स्ट जे काही सीन स्टेटमेंट असतं त्याला इनपुट म्हणून ते स्पेस अँड पुणे इट इज एक्सेप्टेड. म्हणून ते सगळे कॉम्प्लिकेशन्स होतात. आलं का लक्षात व्हॉट आय एम ट्राईंग टू से? येस सर, येस सर. ते आकांक्षा? येस सर. ओके सर ते वाटतं माय NJW वर प्रॉब्लेम देते, पण बाकी ठिकाणी चालतं. Okay, should we start with the inheritance then? Yes, sir. Yes. B1 batch students, are you there? Anyone from B1 batch? Yes, sir. B1. Okay, B2? Yes, sir. येस सर. B3? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. We start with inheritance. Fine. Okay, let me know what you have learned in inheritance. Can anyone tell me? Varad, 233 or Nipun? Varad, are you there? Yes, sir. Nipun? Kahi, Yes, sir. whatever you got, whatever knowledge you received, just let me know that only. What is inheritance? सर चाइल्ड क्लास पॅरेंट क्लास पासून काही प्रॉपर्टीज इनहेरिट करतो, त्याला इनहेरिटन्स म्हणतात. ओके. अजून दुसरं काही कुठं वापरता येईल किंवा कशासाठी आपण शिकतोय हे लक्षात आलंय का? ऍप्लिकेशन. सर एक समजा आपल्याला व्हेकल्स आहेत वेगवेगळे आणि कार ट्रक, तर त्यांच्या प्रॉपर्टीज जर करायचे तर व्हेकल एक पॅरेंट क्लास होईल आणि कार ट्रक और बायसिकल बाईक वगैरे तर ते चाइल्ड क्लास होतील त्याचे. ओके ओके. एनीवन एल्स? अविराज? अविराज? येस सर. तुला काय वाटतं व्हॉट इज इनहेरिटन्स? Aviraj, say something. Please, Aviraj. तर पॅरेंट क्लास पासून डिराइव्ह क्लासला काय प्रॉपर्टी इनहेरिट करतात? बर मग तूच अविराज मला सांग, एखादा क्लास आहे पर्सन, देयर इज अ क्लास पर्सन. सो व्हॉट ऑल प्रॉपर्टी यू कॅन आयडेंटिफाय फॉर क्लास पर्सन? सपोज देयर इज अ पर्सन, व्हॉट ऑल प्रॉपर्टीज दॅट पर्सन कॅन हॅव? अविराज? एज, नेम. एकच मिनिट. कॅन यू सी माय स्क्रीन अविराज? येस. Okay. Yes, sir. So what you are saying is name, age. Okay. What else? Height. Okay. Height. Then again weight. Such things are there, which can be considered as properties of person. Now we can have these properties for class person. Now
if I want to accept this information, I will write a function get underscore person info. Okay, which will accept information of class person. Okay. And similarly, if I want to display it, I will use okay. So these are the two member functions and these are the member variables. Do you all agree? Hello, yes, no. Pradnya? Yes, sir. Yes, sir. Pradnya, unmute राहू दे. Just help me. Okay, sir. Keep yourself unmute. So this is what the member variables and these are the member functions. Now I want to accept students data. For that, what all will be the attributes, Pradnya? What, sir? Student? If I want to accept student information, Name, age, height, weight, then class, division, correct. roll number. Perfect. Roll number. Division, roll number, very good. Okay. So these are the properties of say student. These are the properties of class student. Now, similarly, I want to accept information of employee. Pradnya. Sir, name, age, salary, then What all properties we can use from this class? Student. name, age, height, weight, Correct. salary. Then apart from this, what additional attributes an employee can have? त्याच्या व्यतिरिक्त अजून काय? Salary. Salary, okay. अजून experience in years, okay. There are 1,000 attributes for it. Qualification. ठीक है. Or say post, employee ID, or say company name, company address. Yes. So right now I'll write just company name. Yeah. Salary, and instead of experience, we will take it as an employee ID. So these are the attributes for class employee. Now suppose I have to accept information of person. Then I'll write this class. If I have to accept student information, then I'm writing class student, but out of that some attributes are there which we already have. We have ready-made functions for that. यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम करेंगे get student info. Similarly, put student info, which will accept and display student information. Same is the case with employee. Get employee information, the function which will accept all these attributes values, and put employee function will display all the values of these attributes. बरोबर का? Yes, sir. So now there is a program, okay, in which I have to use both these classes, student, employee. So in that case, what we can do is here variable duplication will be there. इथं पण असणार आहेत. It will be here also, and those variable will be here also. Again, accepting name, age, height, weight. All these statements will be there in this function, as well as in get employee function, right?
Yes, sir. So first of all, we will write class person, wherein we have age, name. Okay, for time being, I will take only two variables. Then we have to accept it here. And while displaying, display age. Now, if I want to accept information of student, he will have these two attributes. Additional to that, we have roll number and percentage. Now, if I include these variables here itself, then in get function, I have to accept these two as well as these two. But the code is already there in previous class. है ना? अगर मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करनी है तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन क्या क्या है? एट्रीब्यूट्स एज, नेम, रोल नंबर, परसेंटेज. So I have to accept age, name, roll number and percentage. Correct? But if you see here, a lot of duplication is there. What kind of duplication? Variable duplication, as well as the lines which are there, code duplication. So in order to avoid this, what we can do is you just define attributes and functions in one class and you can borrow it. फॉर एग्जाम्पल, आपको आपका क्लास है, ठीक है, और आपको सबको वेट करना है, तो आप सब लोग खुद का एक वेइंग मशीन लाओगे क्या? नहीं, आप क्या करोगे? आप एक ही वेइंग मशीन लाओगे और वो सब लोग यूज करेंगे, सारे स्टूडेंट्स यूज करेंगे, ठीक है. या फिर हमें आपको पढ़ाना है एंड आई वांट टू शो यू अ पीपीटी, तो सबके लिए मैं अलग टैब या लैपटॉप दूंगा क्या? नहीं, आई यूज अ कॉमन प्रोजेक्टर जिसपे सब लोगों का कॉमन यूज रहेगा, सब लोग उसी पे देख सकते हैं. तो वैसे ही द एट्रीब्यूट्स विच आर कॉमन, फॉर एग्जांपल हियर these are the four common attributes. So instead of declaring those again and again, what we can do is we can use those attributes and the functions from this class. So I can use all those things, variable as well as function, from this class into this. So that is what? Inheritance. So this is called as which class? Base class. Base Base class. class. Or Parent class. parent class. Parent class. Correct. ठीक है. And these two are called as Derived classes. Derived Or classes. subclass. Classes. और चाइल्ड क्लासेस. ठीक है. सो बिकॉज वी आर इनहेरिटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ, जैसे हम करते हैं अपने माता और पिता के जो भी जीन्स है, कुछ जो एट्रीब्यूट्स है, वो हम इनहेरिट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी इस क्लास को यहाँ पे इनहेरिट किया है. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है. डू यू ऑल नो दोज टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या क्या है? Sir, single inheritance, Well, multiple. multi-level inheritance. Punesh, Yes, sir. here onwards no question for you. ठीक है. Okay, sir. कोणाला विचारत होतो मी आता?
ठीक है, चलो आदित्य 229 येस सर. different types of inheritance. रिकॉल करता येतात काय? कॅन यू रिकॉल दोज? येस नो एनिथिंग चालेल आपल्याला. नाही आठवत तर नाही आठवत म्हणून सांगायचं पाहिजे. आदित्य नो सर. ओके ठीक आहे. रुचा रोल नंबर 230. Yes, sir. Okay, can you tell me the different types of inheritance? Sir, single, Mhm. multiple, Mhm. um, Yes. अजून काही? mm, बरं ठीक आहे. Then रणजित. the types of inheritance. Sir, multi-level inheritance. Good. Multi-level. Next. रणजित अजून सांगू शकतोस का? रुचा. नाही सर, हे तीनच माहिती आहे. बरं ठीक आहे. Hybrid, गुड. hybrid. ओके. हाइब्रिड. और एक ही बाकी है अभी. मुग्धा. वरद. सर हायरार्कियल इनहेरिटन्स. वेरी नाइस. ठीक है. So now we have these 5 types of inheritance. So when there is only one base class, let's start with the single inheritance. Single inheritance क्या होता है? कोई बता सकता है? निपुण. सिंपल. येस सर. सिंगल इनहेरिटन्स सांगता येईल? व्हॉट इज सिंगल इनहेरिटन्स? विच सिंगल पॅरेंटला सिंगल चाइल्ड, येस. सिंगल हेरिटन्स आणि मल्टिपल पॅरेंट्स असतील तर मल्टिपल. So consider this scenario wherein there is one base class and those properties are inherited into only one child class. Okay. One parent, one child, or say one base and one derived class. Then this is called as single inheritance. दोनों सिंगल है इसीलिए. ठीक है. दूसरा क्या है? We'll go to the multi level. और से ठीक है. Hierarchical कुछ जाते हैं पहले. Hierarchical क्या होता है? Hierarchy is what? Have you seen hierarchy somewhere? इतिशा. येस सर. हायरार्की कुठे पाहिलंय का? डायग्राम, हायरार्कियल डायग्राम ऑफ एनीथिंग. No, sir. बरं. एनीवन? तर ते हिस्ट्री बुक मध्ये किंगचे हायरार्कीज असतात तसं. करेक्ट ऍब्सोल्युटली करेक्ट. So this is how hierarchy looks like. That there is someone, then he has 3 children, then those children have again 3 or 4 children. ऐसे जो होता है, that is what is called as hierarchy. या फिर principal, then we have HOD, different departments, say computer, ENTC, civil. So these are the departmental heads. Then again, departmental heads have different class teachers. Then again, different class teacher commands different classes. तो इट कंसिस्ट ऑफ अगेन स्टूडेंट्स. सो ऐसे जो हायरार्की होती है, ठीक है, और इन शॉर्ट वी कैन कॉल इट एज अ ट्री लाइक डायग्राम. ठीक है. हायरार्की इज नथिंग बट ट्री डायग्राम. तो वैसे ट्री डायग्राम कब बनेगा? व्हेन देयर इज ओनली वन बेस क्लास और देयर इज ओनली वन एट द टॉप एंड मल्टीपल्स बिलो दैट, राइट? सिमिलरली इफ वी हैव one base class, one root, and then multiple nodes. So that is what is called as hierarchical inheritance. Hierarchy. So here this person, student, basically student भी कौन होता है? एक person ही होता है पहले. उसे name, age, height, weight सारे attributes है. So these properties can be inherited into student class as well as employee. Employee is also person first.
That's why he can also here we can inherit all these properties and functions into employee also. तो जब ये ऐसे रहेगा, one base class and two derived class or more than one derived class, we will not say two, it can be three also. बताओ third एक example. Fast, anyone? Sir, can you please repeat? I am saying this person attributes, the attributes of this class can be inherited into student. It can be inherited into employee. In the same way, these attributes can be inherited into which class? athlete. Athlete. It can be artist. It can be a singer. Any person. तो यहाँ पे हम वो लिख सकते हैं. तो here this is also hierarchical because there is only one base class and multiple derived class. So derived class कितने हो सकते हैं इसमें? Multiple. हाँ, so should be more than one. More than one. कितने भी हो, फिर 100 है, 1000 है, it doesn't matter. But it has to be more than one because if it is only one, then it becomes single inheritance. Do you agree? Yes, Good. sir. Good. Then we have multi-level inheritance. Multi-level inheritance का example क्या है? Can anyone? Not exactly pyramid, but we can say a building kind of structure wherein same floor का उसके ऊपर होता है, ठीक है, one another one. तो यहाँ पे पर्सन, जो भी पर्सन है, मल्टी लेवल, मल्टी जैसे स्टोरी बिल्डिंग होती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, वैसे यहाँ पे एक के ऊपर एक. ये जो हो गया, ये कौन सा इनहेरिटेंस हो गया? सिंगल इनहेरिटेंस. इसमें और एक लेवल हमने ऐड कर दी. So the properties of this inherited into employee. Employee's properties will be inherited into some another class. Then it becomes multi-level because there are levels. Here, if you see, this is level 0. आपका हुआ है क्या ट्री डेटा स्ट्रक्चर में? सर नहीं, ट्री नहीं हुआ. अच्छा ठीक है, फिर भी मैं एक बोलता हूँ. जैसे होता है कि हमारे पूर्वज, उसके बाद सेकेंड लेवल यानी क्या होता है? सपोज ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के बाद हमारे पेरेंट्स, उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद हमारे ऑफस्प्रिंग आएंगे, है ना? सो दीज आर द लेवल्स. सो ऑल दीज थ्री वेयर दे विल बी एट सेम लेवल. ऑल दीज विल बी एट सेम लेवल. ठीक है, आवर पेरेंट्स विल बी एट सेम लेवल. ग्रैंड पेरेंट एक ये है. तो फिर आपके भी जो सिबलिंग्स है, आप यहाँ कहीं पे हो तो आपके ये सिबलिंग्स हो गए, तो दे विल बी एट सेम लेवल. ऐसे लेवल होता है. सो दीज आर द लेवल्स. तो वैसे लेवल्स यहाँ पे होना चाहिए. ठीक है. सो ओनली वन बेस क्लास, ओनली वन इंटरमीडिएट क्लास एंड ओनली वन डिराइव्ड क्लास. सो दिस इज कॉल्ड एज बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास, इंटरमीडिएट क्लास, मिडल. और इसका एग्जांपल हो सकता है, वी कैन से मैनेजर, बिकॉज मैनेजर इज आल्सो एम्प्लॉय आईडी. सो ही हैव salary, employee ID, company name. Apart from that, he can have a department to which he is leading or the division which he is leading. Right? Do you agree? Yes, sir. Okay. So this is what? Multi-level. I hope आप कहीं पे तो नोट डाउन करके ले रहे हो या फिर you are smart enough to memorize all this. Then we have मल्टीपल इनहेरिटेंस. मल्टीपल, तो मल्टीपल में क्या होता है? देयर आर टू डिफरेंट बेस क्लासेस. तक हमारे डिराइव्ड क्लास ही चेंज हो रहे थे. मल्टीपल बेस क्लास है एंड वी हैव ओनली वन डिराइव्ड क्लास. एक एग्जांपल अगर देना हो तो वी कैन से derived class is result.
बट नाउ आपके रिजल्ट पे क्या क्या होता है आपको पता है, या फिर क्या होने वाला है इस सेमेस्टर में? नहीं आपकी जो टॉपिक है, ठीक है, आपका जो सिलेबस है उसमें अगर आपने देखा होगा तो देयर आर सम एकेडमिक कोर्सेस, राइट, और वी कैन से study related subjects and some extracurricular, or we can call it as a sports. तो आपका रिजल्ट सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं क्या? नहीं, उसमें अगर आपका स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स का भी कुछ तो ग्रेडिंग आएगा. सो बेसिकली सो रिजल्ट कंसिस्ट ऑफ whatever subjects you are learning, those as well as whatever different activities you are performing. So it is combination of that. Result पे सब कुछ आता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ सब्जेक्ट का ही रिजल्ट आएगा. नो, उसमें स्पोर्ट्स का भी रिजल्ट आएगा. डू यू एग्री? यस सर. So this is what? This is example of multiple inheritance, wherein multiple base classes are there. Multiple यानी more than one. So it can be 3 classes also. जैसे स्टडी है, स्पोर्ट्स है, देन आपका लाइफ स्किल्स है. रिजल्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल दिस 3. तो स्टडी के भी उसमें आएंगे, सब्जेक्ट्स भी प्रिंट होगा, स्पोर्ट्स के ग्रेड भी प्रिंट होंगे, एलएस की ग्रेड्स भी प्रिंट होंगे. आर यू गेटिंग दिस एग्जांपल? येस सर. यस सर. This is multiple. Hybrid, that is combination of both, combination of more than 2 different types of inheritance. तो उसका एग्जांपल हम देखेंगे बाद में आराम से. तो इम्प्लीमेंटेशन में कैसे होता है सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर देते हैं. या फिर शुड वी मूव टू द असाइनमेंट? कुछ ना बोलने का मतलब हाँ होता है, ये पता है ना आपको? सर नाही इम्प्लिमेंटेशन सांगा सर 2-3. माहिती आहे ना, समोरचं जर काही बोलला नाही तर त्याचं उत्तर हो असं कन्सिडर केलं जातं. ठीक आहे. कोण बोलत होतं आता? कोण म्हणाला आता? परत सांगायचं ते. सर नाही सर म्हणलो की इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे हा, मग इम्प्लिमेंटेशन तुला हवं आहे ना, मी तुला नंतर सांगतो. आता आपण हे सगळं ह्यांच्या असाइनमेंटचं कव्हर करून टाकू. ओके, सो युअर नेक्स्ट असाइनमेंट इज, जस्ट अ मिनट, आई विल रीड इट आउट. एंड मुझे लगता है आप भी नोट डाउन कर लो थोड़ा सा. यू हैव नोटबुक विथ यू, राइटिंग मटेरियल विथ यू, राइट? यस, नो? यस सर. ठीक है. सो यू जस्ट नोट इट इन शॉर्टकट, डोंट राइट कंप्लीट स्टेटमेंट्स. So now we have to accept information of vehicles. Okay. So the statement is something like this. Consider we want to store information of different vehicles. And basically we have, चलो इन्होंने बहुत ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिंप्लीफाई करके बोला है, हम इतना सिंप्लीफाई नहीं करेंगे. Okay. Consider there are 2 different companies, Audi and Ford. ठीक है, ये दोनों 4 व्हीलर में. एंड सिमिलरली वी हैव say Bajaj and बोला उन्होंने TVS, which are in 2 wheeler. This we will see later on.
नाउ दीज आर क्रिएटिंग फोर व्हीलर्स. तो हमें अब ऑडी में क्या क्या हो सकता है? व्हाट ऑल एट्रीब्यूट्स कैन बी देयर? हेलो कार, चलो आपके लिए थोड़ा आसान सा ले ले, क्या मारुति एंड टाटा नहीं चलेगी, ऑडी चलेगा. चलेगा क्या? ठीक है. क्या क्या पता, अभी आप कुछ बोल नहीं रहे तो मुझे पता नहीं चल रहा है. हाँ, what all attributes can be there in Audi and Ford? मॉडेल. मॉडल नंबर, Very good. So first of all model. प्राइस. ठीक है, तो दोनों में मॉडल रहेगा, ऐसे थोड़ी कि एक में ही होगा. देन प्राइस भी दोनों में होगा, राइट? माइलेज. यस. अच्छा, ये हुआ है क्या आपका या नहीं? नहीं सर, नहीं. ठीक है. और क्या हो सकता है? फंक्शंस सर, फंक्शंस. कलर, फंक्शंस बताते हैं. capacity of the engine. माइलेज का स्पेलिंग बोलो तो जरा. सही है क्या? If mileage, then capacity. Capacity of what? Engine capacity. Okay, or we can say engine power. ठीक है. और number of seats or number of passengers. सर टाइप ऑफ कार भी हो सकता है ना, सेडान है, एसयूवी है. Yes, ठीक है. Type of car. Or we can say fuel. 4-wheel drive Fuel. या 2-wheel drive. हाँ. Yes. इलेक्ट्रिक की जगह पे मैं ये लिखता हूँ फ्यूल. ठीक है. 4 व्हील और 2 व्हील. ओके, से ट्रांसमिशन. ऑटोमेटिक है, हाँ मतलब वो ट्रांसमिशन. ठीक है. और कुछ? सर ब्लूटूथ है क्या? अच्छा, ठीक है. अभी बेसिकली दीज आर दी कॉमन एट्रीब्यूट्स. अब हमें अगर ये सब कुछ इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करनी है तो इस क्लास में भी ये सारे डिक्लेयर करने पड़ेंगे, इस क्लास में भी ये सारे के सारे डिक्लेयर करने पड़ेंगे. तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? सिमिलरली लेट्स गो विथ 2 व्हीलर ऑल्सो. बजाज और टीवीएस. इसमें क्या क्या रहेगा? मॉडल रहेगा, प्राइस रहेगा, माइलेज रहेगा, इंजन पावर रहेगा. नंबर ऑफ सीट्स नहीं रहेंगे, राइट? लेकिन फ्यूल भी नहीं होगा. चलो फ्यूल भी रखते हैं. सर नहीं, फ्यूल इलेक्ट्रिक हो सकता है सर. इसमें गेयर, नॉन गेयर. यस. टाइप ऑफ नंबर ऑफ सीट्स नहीं रहेंगे ना. बेसिकली 2 व्हीलर है तो हम ये कंसिडर करते हैं कि 2 पर्सन्स. इंजन पावर ठीक है, सीसी में होता है. टाइप ऑफ कार नहीं. सर गेयर नॉन गेयर रहेगा ना. टाइप ऑफ कार की जगह गियर, नॉन गियर. सर बाइक हो गई है, स्कूटी. गियर टाइप. ठीक है. गियर टाइप. अब यहाँ पे तो नॉन गियर दोनों आ जाएंगे, और अगर नॉन गियर है तो वी विल कंसीडर दैट इट इज अ स्कूटी काइंड ऑफ थिंग और बाइक. और क्या हो सकता है? टाइप ऑफ बाइक, कम्यूट, वो एडवेंचर वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह वैसा. ओके. कलर. ठीक है, कलर तो इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी कॉमन है, वो छोड़ देते हैं. हाँ, तो अभी हमें एक्सेप्ट करना है इंफॉर्मेशन फॉर सच इंस्टेंसेस. तो हमारे पास जो भी एक व्हीकल आएगा, इट कैन बिलोंग टू दिस कैटेगरी. ऑडी, फोर्ड, बजाज, टीवीएस, किसी भी एक कैटेगरी का वो हो सकता है. तो अगर मैंने ये अलग अलग 4 क्लासेस डिफाइन किए तो क्या क्या डुप्लीकेशन होने वाला है? एवरीथिंग. ठीक है ना. सबके लिए मुझे अलग अलग फंक्शंस लिखने पड़ेंगे, सबके लिए वेरिएबल अलग अलग लिखने पड़ेंगे. डू यू एग्री? यस यस. तो अब बेसिकली ऑल दीज 4 रिप्रेजेंट्स व्हाट? बेसिक, वेरी बेसिक. Vehicle.
vehicle. So what I'll do is I'll define a class vehicle because I want to reduce my effort. हाँ, मुझे प्रोग्रामिंग बहुत कम से कम करना है. ठीक है, अगर समझो इसमें कुछ सारे इसके लिए रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट, ठीक है, और व्हीकल नंबर ये अगर ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू चेंज हियर इन दिस क्लास, इन दिस क्लास, इन दिस क्लास ऑल्सो. एवरीवेयर आई हैव टू ऐड दैट एट्रीब्यूट, से नंबर प्लेट और व्हीकल नंबर. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैंने 4 अलग क्लास डिफाइन किए हैं तो आई हैव टू डिफाइन दैट वेरिएबल इन ऑल क्लासेस. Again, I have to modify get function of all 4 classes. I have to modify display function of all 4 classes. Do you agree? Yes, sir. So what we Yes, will sir. we will identify a base class. Basically, all these are the vehicles. अब इसमें कॉमन क्या क्या होता है? फिर मॉडल प्राइस. नहीं, मॉडल कैसे कॉमन रहता है? हाँ, प्राइस सब लोगों में है. ठीक है, तो वो हम यहाँ से निकाल देते हैं एंड वी विल डिफाइन हियर प्राइस. और कॉमन इज माइलेज. देन कलर, इंजन पावर और सीटिंग कैपेसिटी. ठीक है, ट्रांसमिशन सर. सर सीटिंग कैपेसिटी तो नहीं ना, मतलब कॉमन नहीं है ना, टू व्हीलर्स में तो. यस, ठीक है ठीक है ठीक है. तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इंजन पावर तक तो लिखते हैं. ठीक है, देयर आर अगेन multiple attributes. Now you can identify multiple attributes here, but for time being we will identify only 3. और बहुत सारे हैं जो कॉमन है सब में. जैसे ट्रांसमिशन है, ठीक है, फ्यूल है, ये सारे के सारे कॉमन है. चलो, अब अगर मुझे नंबर प्लेट ऐड करना है तो यहाँ पे जैसे 4 जगह पे चेंज करना पड़ रहा था वैसे मुझे करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑल दीज विल बी इनहेरिटिंग एट्रीब्यूट्स फ्रॉम दिस व्हीकल क्लास. सो इफ आई वांट टू ऐड समथिंग, one attribute, I want to add one attribute which belongs to all these 4 vehicles, then instead of modifying all those 4 classes, what I can do is I can modify only Vehicle class. yes, and that can be reflected everywhere क्योंकि ये सारे उसी को इनहेरिट कर रहे हैं ना. सही बात है? Yes, sir. यस सर. गुड. सर मॉडेल पण असू शकतं ना, म्हणजे कसं मॉडेल ठीक आहे. नंबर अलग है सर. हाँ, फक्त सर लाईक फक्त ते नेम वेगळे असतील ना. ठीक है ठीक है. राइट नाउ कंसिडरेशन इज अप टू अस, सो डोंट वरी अबाउट इट. हम जो कंसिडर करेंगे वही है. हाँ, बेसिकली दिस इज द रिक्वायरमेंट गैदरिंग. ये हमें कस्टमर से लेना होता है जिनके लिए हम ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं. सो राइट नाउ वी आर कंसिडरिंग. सो दीज आर द कॉमन थिंग. नाउ again there are some different things for these 2 classes and these 2 classes, right? एक तो हमने सारे चारों के चारे कॉम्बिनेशंस में से कॉमन निकाले. अभी दो के कॉम्बिनेशन है ना. these are the 4 wheeler, these are the 2 wheelers कंपनीज. तो 4 व्हीलर में क्या क्या कॉमन है? या फिर we can say a class car and a class Two-wheeler. two-wheeler. So these are the 2 different classes. Now this class is base class for these 2 derived class. These 2 derived class have this base class. तो कार में क्या क्या कॉमन होता है? Number of seats. Yes, so here I will write number of passengers or number of seats. Car type. ठीक है. हाँ, जो आपने बोला, whether it is sedan or XUV, so here we will write car type. Number of airbags. Yes, number of airbags. So right now again
कार के लिए बहुत सारे कॉमन है, लेकिन हमने सिर्फ 2 ही आइडेंटिफाई किया। टू व्हीलर के लिए क्या होता है? गियर टाइप। गियर है कि नॉन गियर है? अच्छा, वो तो कार में भी आ रहा है ना, तो कुछ उसमें ऑटोमेटिक या मैनुअल रहेगा ना, बाइक में तो है कि नहीं है वैसे है? यस यस यस, वेदर गियर्ड और नॉट। गियर्स, नंबर ऑफ गियर्स 0 और जितने भी 4 या 5, ठीक है, तो वहीं पे हमें पता चल जाएगा वेदर इट इज गियर्ड और नॉट। करेक्ट। और क्या हो सकता है टू व्हीलर का एट्रीब्यूट विच इज डिफरेंट फ्रॉम कार? एनीवन एल्स? और कोई बात कर सकता है या सारे के सारे? ओम। स्पोर्ट्स बाइक है या नॉर्मल बाइक है? करेक्ट। सो वी कैन से बाइक टाइप। बाइक टाइप। ठीक है, वी कैन नॉट इंक्लूड दिस एट्रीब्यूट ओवर हियर, कैन वी? नो सर, नो। No sir. Car type is different and bike types are different, so it has to be included in this part only, in this level only. ठीक है, and after that we have Audi and Ford. तो Audi का मॉडल नंबर कुछ अलग होता है ना, Ford का कुछ अलग होता है, तो हम ये करेंगे कंसिडर कि it is something like this. और किसी को कुछ इसमें चेंजेस सजेस्ट करने? So basically this is our base class. So now these 5, whatever these 5 attributes are there, वो सारे के सारे उसका एक्सेप्ट और डिस्प्ले यहीं पे होगा, उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस है, those operations can be performed here only, and it can be used by vehicle, can be used by 1 2 3 4. Similarly car, whatever common attributes are there for cars, those can be included here, and from there different car companies can inherit those properties. So basically Audi is inheriting properties of which class? Car class and vehicle class. Yes, basically Audi is inheriting properties of vehicle as well as car classes. Ford किसका कर रहा है? Again कार एंड व्हीकल। vehicle, car, Ford. Bajaj टू व्हीलर, व्हीकल टू व्हीलर एंड vehicle, two wheeler Bajaj, vehicle, two wheeler TVS. ठीक है, अब मुझे ये बताओ, if I consider only this much inheritance, हाँ मी ज्यांना विचारतो त्यांनी सांगायचं आता, if I consider only this much inheritance, so it is what type of inheritance? वरद 233. मल्टिपल. थोडस लक्ष दे परत. एक बेस क्लास आहेत आणि मल्टिपल डिराइव्ह क्लास आहेत, असं कुठं असतं? शुभम और मल्टी लेवल. सी, मैंने जो हाईलाइट किया है उतना ही कंसिडर करो, फॉरगेट अबाउट ऑडी, फोर्ड, बजाज, टीवीएस. नीचे का पार्ट है ही नहीं, ऐसे समझो, बस इतना ही है. चाइल्ड तो 2 होगा ना, फिर सिंगल कैसे बोलेंगे? सिंगल तो नहीं है, बिल्कुल सही है. तो मैंने कब कहा ये सिंगल है? बिल्कुल सही है. हायरार्कियल. ठीक है, जहाँ पे हायरार्की है, एक बेस, जैसे हमने बोला था ना कि हमारे पेरेंट्स, भाई बहन, वैसे ही. सो दिस इज which class? Hierarchical inheritance. ठीक है, hierarchical inheritance. Now if I consider, जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मुझे चाहिए, और जिससे पूछूंगा वही बताएगा. स्वजय, स्वजय, यस सर. हे कुठल्या टाइपचं इनहेरिटन्स आहे? Okay, basically is there anyone who don't understand Marathi? Because many times
ठीक। सोचे। अब्दुल। अब्दुल एब्सेंट है क्या? सानिका। Sir, multi-level inheritance. Multi-level inheritance. True, very true. So, multi-level inheritance. Now, what you have to do is you have to write program for this. आपने तो बोला है सब लोगों को सिंटैक्स आता है, तो अभी आपको इस 4 क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं और आपको इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करनी है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, यू हैव टू कंसिडर दैट वी हैव वन ऑडी कार, वन फोर्ड कार, वन बजाज बाइक and one TVS bike, and you have to accept information of all those 4 vehicles. तो उसके लिए आपको एक प्रोग्राम लिखना है। स्टार्ट प्रोग्रामिंग। सर तुम्ही इम्प्लिमेंटेशन सांगणार होते ना नंतर? हो, ते पूर्णेशलाच सांगणार आहे, बिकॉज ही सेड ओनली की सर मी पण सांगितलं चॅट बॉक्स मध्ये, तेव्हा माझं माईक नव्हतं चालत. असं कसं? मी इथे विचारतो आणि तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये का टाकताय? सर टाइम पण टाकलेलं. ठीक आहे, प्रथमेश आणि पूर्णेश, बाकी सब लोग स्टार्ट। पूर्णेश आणि प्रथमेश मला पिंग करा याच्यावर, टेलिग्रामवर किंवा व्हॉट्सअप एकावर करा, दोघांनी ठरवून। ओके सर. ठरवतो। बाकी सब लोग कर रहे हो ना? मुझे चाहिए जितना टेलीग्राम वर ना सर? हाँ हाँ। By 3:15 I want to see some progress in your program, or depending upon that we will mark attendance. सर ती एकदा एक्सेल शीट दाखवता का? Note it down, all these classes, attributes, and basically remember the process, that how we have segregated the attributes, how we have differentiated the classes, how we have differentiated the attributes. ठीक है, कौन से कैटेगरी में कौन से लेवल पे हमने उन्हें डाला है।
If you have any doubts, feel free to ask, or you can put it in a chat box. सर तुम्ही एकदा ती शीट परत दाखवाल का? लिहून घ्या, नोट इट डाऊन. First of all, note it down, all of you. We have vehicle class. थँक्यू सर. स्क्रीनशॉट घेतलं तरी चालेल. सर मगाशी पण घेतलेला पण तो आता ओपन होत नाही.
सर बोला। सर आई हैव नो आइडिया सर, करना क्या है सर, आप क्लैरिफाई कर सकते हो सर एक बार। हम्म। सर मुझे समझ नहीं आया सर, करना क्या है सर। तो अभी इतनी देर तो मैं पूछ रहा था, एनी डाउट एनी आइडिया थे क्या? कहाँ तक सुना है? सर गलती से हम्म। सॉरी सर। नहीं नहीं, कहाँ तक सुना है वो तो बताओ, या सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताना है क्या करना है? सर बस प्रॉब्लम नहीं बता दो सर। हाँ, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि ये जो क्लासेस है, ठीक है, इनहेरिटेंस के, इसमें ये एक बेस क्लास है, इस बेस क्लास से ये दो क्लास इनहेरिट हो रहे हैं, और रिस्पेक्टिवली फ्रॉम कार दीज टू क्लासेस आर इनहेरिटेड. This is the base class. These two are inherited. कुछ ऐसा इनहेरिटेंस है ये, और इसी से ये ऐसे इनहेरिट हुआ है. तो बेसिकली व्हीकल क्लास से ही कार, और कार से ऑडी और फोर्ड, ऐसे व्हीकल से ही टू व्हीलर, टू व्हीलर से बजाज और टीवीएस. तो हमें क्या करना है, वी हैव टू एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल दीज फोर इंस्टेंसेस. फॉर एग्जांपल पल्सर की भी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करनी है. टीवीएस तो कोणती आहे रे बाईक? चलता है सर। हाँ, तो वो हीरो होंडा ले लेंगे सर, कुछ नहीं। जुपिटर है ना सर, टीवीएस. जुपिटर। जुपिटर है, ऑडी का एक कोई मॉडल कंसिडर करो, फोर्ड का एक मॉडल कंसिडर करो. ऑडी R8 है ना, R8। आपलं असं की ज्या वाटेला जायचं नाही त्या वाटेची आपण कधी चौकशी केली नाही, त्याच्यामुळे आम्हाला काय ऑडीचं माहित नाही. चला, इज दिस क्लियर? दिस पर्सन संजीत. यस सर, थैंक यू सर। सर वो जो ब्लॉक्स में है वो सर डेटा मेंबर्स है ना सर क्या? हाँ, जैसे आप अपने हिसाब से थोड़ा वो कम ज्यादा कर सकते हो. कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यू हैव टू फॉलो दीज एट्रीब्यूट्स ओनली. इट इज फॉर प्रैक्टिसिंग पर्पस. जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा गूगल क्लास पे, तब उसमें जो भी एट्रीब्यूट बोले स्ट्रिक्टली यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल दोज एट्रीब्यूट्स. अभी तो ये प्रैक्टिस है, तो इसमें आप कम ज्यादा कर सकते हो, बट द थिंग इज टू वर्क. ओके. नॉन गैर या फिर गैर. आपके हिसाब से आप कर लो. से अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज फ्लेक्सिबल, वी आर लर्निंग कंसेप्ट. ठीक है, तो कंसेप्ट सीखते वक्त ये एडिशन सर 2+5 की करूँ या 2+6 की करूँ, तो कुछ भी करो चलेगा, लेकिन एडिशन करो. तो वैसे ही यहाँ पे गियर्स सर मैं कितने 0 1 2 3 4 लूँ या फिर गियर नॉन गियर लूँ, तो इट्स अप टू यू. आई वांट दैट एट्रीब्यूट, आई वांट और आई expect at least 2 attributes in two-wheeler class. That's it. You can take any other attribute also other than gear if you want.
त्र्यंबकराज, Yes, sir. can you share your screen? Okay, sir. कितना कितना हुआ है सिर्फ वही देखना है और कैसे चल रहा है. Okay. Is it visible, sir? Yes, yes. मोबाईल सर मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ. पण ते त्रासदायक नाही का मोबाईलवर? Yes, sir. लिहून करायचं ना, लिहून करायचं ना, मग नोटबुकवर त्याचा फोटो वगैरे पाठवता येतो. Okay, sir. फक्त मला बघू दे. Vehicle. थांब. Vehicle. नंबर कशासाठी घेतलायस? अच्छा, नंबर प्लेट. ओके, ठीक. Yes, sir. करेक्ट. डिस्प्ले, ठीक आहे. गो डाऊन. बस. Sir. हा, ठीक आहे. कर कंटिन्यू कर. ओके. Okay, sir. आता तुला बाकीचे क्लासेस पण अगोदर लिहावे लागते ना. यू हॅव टू डिफाईन दोज क्लासेस. Yes, sir. Yes. गुड. Is there anyone who is writing this program on laptop or desktop, not on mobile basically? Yes, sir. Will you share your screen, please, Uda? Yes, sir. Yes, sir. Yes, दिसते. एकच मिनिट. स्क्रीन. अरे मला बघू दे ना प्रोग्राम 1-2 मिनिटे फक्त. Oh, okay. I thought. नाही फक्त नाही बघायचं होतं मला फक्त. Yes, sir. बर, ऐक ना. आय डोंट नो, मी अगोदरच्या प्रोग्राम मध्ये चेक नाही केलं त्याचं त्र्यंबकराजचं, पण आपलं जे हे आहे ना, फ्युएल टाईप. Yes, sir. फ्युएल टाईप, Uh-huh. त्याचा डेटा टाईप आपण फ्लोट नाही घेणार ना. आपण तिथे काय घेणार, तो फ्युएल तर काय म्हणणार आहेस? Yes. String type येऊ शकते. येस, करेक्ट. Okay. Yes, sir. I see that. बरोबर आहे. मायलेज पण ठीक आहे, पॉवर ठीक आहे, ते सगळं ओके. गेट इन्फो केलेस, पण तू सगळे व्हेरिएबल पब्लिक मध्येच का घेतलेस, प्रायव्हेट मध्ये का नाही घेतलेस? आपलं ठरलंय ना की प्रायव्हेट मध्ये घ्यायचे सगळे. हा सर, राईट. तसं पण होऊ शकतं आणि मेथड्स त्यांना इम्प्लिमेंट करू शकतात. हो, अगदी. येस सर. आणि इथून पुढे तीच प्रॅक्टिस फॉलो करायची. ओके. येस सर. एकच मिनिट थांब. येस. व्हेकल, सीट्स, टाईप, सर कार टाईप मध्ये काय येणार? कार टाईप मध्ये आपलं ते चाललेलं ना की सिडान आहे का एक्सयूव्ही आहे. ओके सर. गेट इन्फो. बर, आता मुग्धा, येस सर. काय कर, अगोदर आता तू कार केलंयस ना, येस सर. कारचं सगळं एक्झिक्यूट करून घे, म्हणजे कारचं एकदा कम्प्लीट करून घे. मग तू नंतर 2 व्हीलर ऍड कर, नंतर 2 व्हीलरच्या 2 कंपनीज ऍड कर. ओके सर. स्टेप बाय स्टेपचा. व्हेकल झाले, कार झाले, आता डायरेक्टली हे घे, ऑडी. ओके. आणि ऑडीचं ते एकदा ऑब्जेक्ट क्रिएट करून हे सगळी इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट होतीये का ते बघायचं. दॅट इज डन. देन गो फॉर टू व्हीलर. फोर्ड. तो क्लास ऍड करायचा आपल्याला. ओके. फोर्ड क्लास ऍड करून त्याचं होतंय का, मग ते झालं की मग 2 व्हीलर कडे जा. अदरवाईज नंतर खूप कॉम्प्लेक्सिटी वाढते आणि कन्फ्युजन होण्याची शक्यता जास्त आहे. ओके. येस सर. ठीक. गुड. थैंक यू सर. और कोई है जो शेयर कर सकता है स्क्रीन? डेस्कटॉप या फिर मोबाइल पे?
कोई दिक्कत नहीं, willingly. I have created one assignment in practice session with the name inheritance. So whatever program you are writing right now, you have to submit it there only.